پیارے دوستو، شب برات کی رات ایک نیک حافظ قرآن لڑکی پر اللہ تعالیٰ کی ایسی سخت پکڑ ہوئی کہ وہ تڑپ تڑپ کر جان کی بازی ہار گئی۔ جب اسے قبر میں دفنایا جانے لگا تو ایک خوفناک منظر دیکھنے کو ملا جسے دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ آخر اس نیک حافظ قرآن لڑکی نے ایسی کیا غلطی کی تھی کہ شب برات کی مقدس رات میں اللہ کا سخت عذاب اس پر نازل ہوا؟ یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بڑی عبرت اور سبق آموز حقیقت ہے۔ پیارے دوستو، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ میرا نام سکینہ ہے۔ ہم دو بہنیں تھیں اور ہمارا دنیا میں کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ میری شادی حبیب سے ہوئی اور میں رخصت ہو کر شہر چلی گئی۔ میری چھوٹی بہن نوری تھی۔ ہمارے والد صاحب کی ہر کوئی عزت کرتا تھا اور والدہ کو بھی لوگ ادب سے آپ کہہ کر پکارتے تھے۔ ہمارے والد صاحب نظر و نیاز کا خاص اہتمام کرتے اور خاص طور پر شب برات کے مہینے میں عبادات کا خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا۔ شب برات کی پہلی تاریخ سے ہی ہمارے گھر میں عبادتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے تھے کہ والدہ اور والد شب برات کے پورے مہینے روزے رکھتے، رمضان کی تیاریاں کرتے اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں محافل کا انعقاد کرتے۔ نظر و نیاز کی تیاری میں ہم دونوں بہنیں بھی والدہ کا ہاتھ بٹایا کرتی تھیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کو بیٹے کی نعمت سے محروم رکھا تھا، مگر انہوں نے کبھی اس کمی کو محسوس نہیں کیا۔ میرے والد اکثر کہا کرتے تھے، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی تھی اور بیٹیاں نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ میرے شوہر حبیب کو معلوم تھا کہ شب برات میں میرے والدین کے ہاں خاص اہتمام ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر سال مجھے پورے مہینے کے لیے میرے میکے چھوڑ جاتے تھے۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے اور اس بار بھی پچھلے سالوں کی طرح حبیب مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑنے آئے۔ ماشاء اللہ، میرے والدین کے گھر کی شب برات کی رونق ہی الگ ہوتی تھی۔ میرے والدین دونوں حافظ قرآن تھے اور والدہ بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھیں۔ امی جان ذرا کمزور ہو گئی تھی تو بچوں کو نوری پڑھاتی تھی جو خود بھی حافظ قرآن تھی۔ شب برات کی رات ہمارے گھر میں محفل میلاد کا اہتمام تھا اور نوری کئی دنوں سے اس کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے سارے پردے اور قالین دھو کر گھر کو صاف ستھرا کیا تھا۔ نماز کے بعد نوری نے اپنے ہاتھوں سے فاتحہ کے لیے تبرک تیار کر کے اس کے پیکٹ بنا دیے۔ محفل میلاد سارا دن جاری رہی۔ نوری نے مہمانوں کی خوب خدمت کی۔ شام کو دعا ہوئی اور پھر سب مہمان اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تاکہ شب برات کی رات خاص عبادت کر سکیں۔ نوری نے ہم سب کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا تبرک کھلایا۔ ہم سب تھکاوٹ سے چور ہو چکے تھی، اس لیے اپنے کمروں میں جا کر آرام کرنے لگے۔ میں نے سوچا کہ رات کا نصف حصہ گزار کر خاص عبادت کروں گی، مگر نوری اکیلے ہی سارا گھر سمیٹنے میں مصروف رہی۔ لیکن پھر رات کے تقریباً 2 یا 3 بجے ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ نوری کی دردناک چیخ کی آواز سن کر میں ہڑبڑا کر بستر سے اٹھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے صحن میں پہنچی جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ امی اور ابا بھی صحن میں آ چکے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ نوری زمین پر تڑپ رہی تھی، اس کے ہاتھ مڑے ہوئے تھے اور وہ انتہائی تکلیف میں چیخ رہی تھی۔ نوری کی حالت انتہائی خوفناک تھی۔ اس کے منہ سے گالی نکل رہی تھی اور بڑی مشکل سے کانپتی ہوئی آواز میں وہ صرف اتنا کہہ پائی، مجھے کسی عجیب و غریب زہریلے جانور نے کاٹا ہے۔ امی جان کی حالت خراب ہو گئی۔ میرے شوہر نے فوراً گاڑی کی چابی اٹھائی اور نوری کو لے کر قریبی اسپتال کی طرف دوڑ پڑے۔ مگر جیسے ہی ہم اسپتال پہنچے ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد افسوسناک خبر دی، یہ ہسپتال پہنچنے سے 10 منٹ پہلے ہی وفات پا چکی ہے۔ یہ سن کر ہم سب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کیسے ہو گیا۔ صبح فجر کے بعد ہمارے گاؤں کے قبر کھودنے والے عبداللہ قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاؤں میں جب بھی کسی کا انتقال ہوتا تو یہی شخص قبر تیار کرتا تھا۔ جیسے ہی عبداللہ قبر کھودنے کے لیے پہنچا، اسے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے کچھ غیر معمولی ہونے والا ہو۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ رہی تھی اور وہ کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی بھی کسی قبر کھودتے وقت اسے ایسی حالت نہیں ہوئی تھی۔ مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ آج زمین بھی پہلے سے زیادہ سخت محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ کسی طرح قبر کھودنے میں رکاوٹ ڈال رہی ہو۔ عبداللہ نے بمشکل قبر کھودی۔ جب نوری کے جسد خاکی کو غسل دیا جا رہا تھا تو اچانک اس کے جسم سے ایک عجیب بدبو آنے لگی۔ پہلے سب نے سوچا کہ شاید یہ زہریلے جانور کے کاٹنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، مگر بدبو اتنی شدید تھی کہ سب حیران رہ گئے۔ غسل دینے والی خواتین پریشان ہو گئیں اور وہاں موجود سب لوگ خوفزدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور گاؤں کے سب لوگوں کی زبان پر تھا کہ باپ بھی حافظ قرآن تھا۔
वो बहुत नेक लड़की थी। बच्चों को कुरान मजीद की तालीम भी दिया करती थी। नूरी को पूरे महल्ले में नेक और परहेजगार समझा जाता था। लोग जौक दर जौक जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे। जब मेरी हाफिज़न कुरान बहन का जनाजा कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो ये पूरे गांव की तारीख का शायद पहला जनाजा था जिसमें मर्दों से ज्यादा बच्चे शरीक थे। सब बच्चों की आंखें रोने से सुर्ख हो चुकी थीं। वो सिसकियां लेकर यही दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह, हमारी नूरी की मंजिलें आसान फरमा दे। उन सब के लबों पर कलमा तैयबा का वर्द जारी था। मेरी बहन की वफात पर पूरे गांव के बच्चे जनाजे में शामिल थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन सब बच्चों की मां थी और उनसे जुदा हो गई हो। मेरे शौहर बच्चों को देखकर हैरान थे। किसी ने उन्हें बताया कि नूरी हाफिज़न कुरान थी और उन सब बच्चों को कुरान पढ़ाती थी। वो हर एक बच्चे के बहुत करीब थी और अपने शागिर्दों से बेपनाह मोहब्बत करती थी। इसीलिए बच्चे इसकी अचानक वफात पर इतने गमज़दा थे। लेकिन गोरकन हैरान और परेशान था। वो इतने बड़े जनाजे को आता देख रहा था। कलिमा शहादत के नारे गूंज रहे थे। जनाजे को देखकर साफ लग रहा था कि ये लड़की बहुत नेक थी। दूसरी जानिब कब्र को देखकर अब्दुल हमीद परेशान था और उसके लबों पर इस्तिग़फ़ार अल्लाह का वर्द जारी था। जब मेरी बहन नूरी को कब्र में उतारने लगे तो अचानक मिट्टी हिलने लगी। यूं महसूस हुआ जैसे मिट्टी में कुछ मौजूद हो। वहां मौजूद लोगों ने ये मंजर देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। इससे पहले कि नूरी को कब्र में दफन किया जाता एक बहुत ही भयानक सांप उसके मुंह से निकल आया और उसने अंधाधुंध मैयत को काटना शुरू कर दिया। अगले ही लम्हे वहां मौजूद लोगों ने मैयत को कब्र से बाहर खींच लिया। बिच्छू और सांप कब्र के अंदर ही रह गए, लेकिन बेशुमार और सांप नमूदार होने लगे। वो मंजर देखकर वहां खड़े लोगों की चीखें निकल गईं। ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। ये कैसे हो सकता है? ये तो हाफिज़न कुरान थी। इसकी कब्र से सांप और बिच्छू कैसे निकल सकते हैं? ये लड़की तो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थी और दीनी दर्स दिया करती थी। फिर ऐसा क्यों हुआ? कुछ लोगों ने कहा कि इससे जरूर कोई ऐसा गुनाह सरजद हुआ होगा जिसकी वजह से इसकी कब्र में यह खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। जनाजे में शामिल लोग कब्र से दूर हटकर खड़े हो गए। कोई भी कब्र के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था और न ही कोई मैयत को दफन करने की जुर्रत कर रहा था। मेरे वालिद ने अब्दुल्ला से कहा, दूसरी कब्र तैयार करो। अब्दुल्ला ने दूसरी कब्र खोदना शुरू कर दी, लेकिन वहां भी वही खौफनाक मंजर देखने को मिला। बल्कि दूसरी कब्र में तो बेशुमार सांप और बिच्छू पहले से ही मौजूद थे, गोया वो किसी के इंतजार में थे। मेरे शौहर भी वहां मौजूद थे। वो गांव के चंद लोगों को लेकर इलाके के एक मशहूर इमाम साहिब की खिदमत में हाजिर हुए। वो अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे और गांव वाले उनका बेहद एहतराम करते थे। गांव में जब भी कोई हादसा पेश आता या कोई परेशानी आती सब लोग उन्हीं से मशवरा लेते थे। इमाम साहिब गांव वालों को परेशान देखकर बोले। गांव वालों ने सारा माजरा इमाम साहिब को बता दिया। ये सुनकर इमाम साहिब हैरान रह गए और बोले, मुझे भी कब्रिस्तान ले चलूं, मैं अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहता हूं। जब इमाम साहिब कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां लोगों की भीड़ लग चुकी थी। लोगों ने उन्हें देखकर जल्दी से रास्ता खाली कर दिया। इमाम साहिब ने एक नज़र मेरी बहन नूरी की मैयत पर डाली और फिर कब्र की जानिब देखा। जनाजे में शरीक बच्चे अब दूर खड़े हो गए थे, कोई भी मैयत के करीब जाने को तैयार नहीं था। इतने में एक शख्स इमाम साहिब के पास आया और कहने लगा। पहली कब्र में दफनाने लगे तो उसके मुंह से सांप निकल आया। दूसरी कब्र खोदी तो वहां भी सांप और बिच्छू निकल आए। लोग खौफजदा हैं, अब क्या करें? इमाम साहिब कुछ देर खामोश रहे, फिर कब्र के करीब गए। जब कब्र पर निगाह डाली तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। इस वक्त भी इस कब्र में अजीब व गरीब जानवर मौजूद थे। दीवारों से मिट्टी झड़ती हुई महसूस हो रही थी, गोया बेशुमार बिच्छू रेंग रहे हों। इमाम साहिब की आंखों में आंसू आ गए और वो बुलंद आवाज में अल्लाह का जिक्र करने लगे। वहां मौजूद लोगों ने अपनी समझ के मुताबिक मेरी बहन के बारे में इमाम साहिब को मालूमात देना शुरू कर दी। 4 घंटे गुजर चुके थे और मैं भी वहीं कब्रिस्तान में मौजूद थी। इमाम साहिब ने हुक्म दिया, ये वाक़या शब बारात की रात पेश आया है, इसलिए इस लड़की की मैयत को इसके घर ले जाया जाए। लोग सरगोशियां कर रहे थे कि आखिर ये क्या मामला है। अब तो हर तरफ चामगोइयां होने लगे और कई लोगों ने नूरी के बारे में बुरी बातें कहना शुरू कर दीं। मेरे वालिद की हालत गैर हो चुकी थी और मेरी मां भी रो रो कर निढाल हो गई थी। बहरहाल मेरी बहन की मैयत को घर के आंगन में रख दिया गया।
घर के बाहर लोगों का हुजूम लग चुका था और हर शख्स नूरी के बारे में अपनी अपनी राय दे रहा था। कोई कहने लगा, हम तो इसे बहुत नेक समझते थे, लेकिन ये हाफिज़ कुरान होकर भी लड़कों को अपने घर बिलाकर पढ़ाती थी। यही वजह है कि अल्लाह ने इस पर अजाब नाजिल किया, वो भी शब बरात के मुक़द्दस महीने में। एक और शख्स ने कहा, ये तो कम उम्र बच्चों को तालीम देती थी, फिर आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? ज़रूर उसने कोई बड़ा गुनाह किया होगा। इसी दौरान इमाम साहिब वहां पहुंचे और अचानक सब खामोश हो गए। एक शख्स ने इमाम साहिब से सवाल किया, अब इस लड़की की मैयत दफनाई जाएगी या नहीं? जो कुछ इसके साथ हो रहा है, इससे लगता है कि यह बहुत ज्यादा गुनाहगार थी। तभी तो जमीन ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। इमाम साहिब ने सबको खामोश रहने का इशारा किया और बोले, अल्लाह के यहाँ कौन नेक है और कौन बदबख्त, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। फिर इमाम साहिब हमारे घर के अंदर आए और मेरे वालिदैन से नूरी के बारे में सवाल किया। क्या वो माँ बाप की नाफरमान थी? क्या वो आपका दिल दिखाती थी? मेरी माँ और वालिद रोने लगे और कहने लगे, हमारी नूरी ने आज तक कभी उफ तक नहीं कहा। वो घर के सारे काम खुद करती थी और सोने से पहले मेरे पांव दबाकर सोती थी। चंद माह पहले जब मुझे फालिज हुआ तब भी वही मेरे लिए सब कुछ करती रही। इसने कभी मुझे बिस्तर से उठने की जरूरत तक महसूस नहीं होने दी। वो हमारे एक इशारे पर हाजिर हो जाती थी। ये सब सुनकर इमाम साहिब भी बेहद परेशान हो गए। उन्होंने वुज़ू किया, 2 नफल अदा किए और दुआ करने लगे, आ अल्लाह, ये क्या मामला है? इस बच्ची को ज़मीन क्यों कबूल नहीं कर रही? दुआ के बाद इमाम साहिब हमारे सह में बैठ गए और हम सब उनके पास जाकर बैठ गए। मेरी माँ ने इमाम साहिब को बताया, नूरी दिन भर शब बरात की महफिल मिलाद के इंतजामात में मसरूफ रही। इसने तन्हा महफिल के तमाम काम संभाले। रात को जब हम सब आराम करने लगे तब भी वो अकेले ही सफाई कर रही थी। हमने अपनी जिंदगी में ऐसा वाकया कभी नहीं देखा। इमाम साहिब भी सोच में पड़ गए। इतने में मेरी बहन की बचपन की सहेली रानी वहां आई। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। वो नूरी की बचपन की दोस्त थी, लेकिन चंद माह पहले किसी बात पर दोनों में इख्तिलाफ हो गया और उनकी दोस्ती खत्म हो गई। फिर रानी की शादी हो गई और नूरी इसकी शादी में भी शरीक ना हुई। रानी इमाम साहिब मेरी माँ और मेरे वालिद के सामने बैठ गई और रोते हुए बोली, जब मुझे ये खबर मिली कि नूरी की कब्र पर यह सब कुछ हुआ है तो मुझसे रहा ना गया। मुझे पहले ही डर था कि कहीं अल्लाह ताला मेरी सहेली से नाराज ना हो। मैंने इसे बहुत समझाया था कि तौबा कर ले, लेकिन इसे अपनी गलती का एहसास तक नहीं था। इमाम साहिब ने नूरी की तरफ देखा और कहा, बेटी, जो कुछ कहना है सच सच कहो, क्योंकि मरे हुए लोगों पर तोहमत लगाना गुनाह कबीरा है। रानी ने अपना पर्स खोला और उसमें से एक मोबाइल फोन निकाला। फिर इसने कुछ मैसेजेस और तस्वीरें इमाम साहिब को दिखाएं, जिन्हें देखकर हम सब की रूह कांप गई और हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। रानी ने कहा, मुझे मालूम था कि अब लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए सबूत साथ लाई हूं। नूरी के पास अपना मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए वो अपने बॉय फ्रेंड से बात करने के लिए मेरा फोन इस्तेमाल करती थी। जब मेरी नूरी से लड़ाई हो गई और मेरी शादी हो गई तो ये फोन बस यूं ही मेरी अलमारी में पड़ा रहा। फिर इसने मजीद कहा, जब भी गांव में महफिल मिलाद होती नूरी मुझे साथ ले जाती, लेकिन जैसे ही मैं महफिल में बैठती वो चुपके से अपने बॉय फ्रेंड से मिलने चली जाती। ये सब 7 माह पहले से चल रहा था। एक बार इसने अपने घर में महफिल मिलाद के दौरान इस लड़के को बिलाकर छत पर छुपा दिया। जैसे ही महफिल खत्म हुई और सब लोग अपने घरों को चले गए, नूरी ने अपनी वालिदा और वालिद की खीर में नींद की गोलियां मिला दें ताकि वो बेखबर होकर सो जाएं और वो अकेले अपने महबूब के साथ वक्त गुजार सके। लेकिन गलती से इसने अपनी वालिदा की खीर में ज्यादा दवा डाल दी, जिसके बाइस उन्हें फालिज हो गया। ये सुनकर मेरी माँ और वालिद सकते में आ गए। रानी ने मजीद कहा, मैंने इसे बार बार समझाया कि तौबा कर ले, लेकिन वो अपनी जिद पर कायम रही और मुझसे दोस्ती भी खत्म कर दी। वो अपनी इबादत और हिफ्ज़ कुरान होने पर फख्र करती थी। फिर रानी ने मोबाइल फ़ोन में मौजूद वॉइस नोटिस मैसेजेस और वीडियोज़ दिखाएं जो इस सारी हकीकत को साबित कर रही थीं। ये सब देखकर हमारी दुनिया अंधेर हो गई। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि नूरी हमारी आंखों में धूल झोंक कर ऐसी हरकतें कर रही थी। अफसोस तो इस बात का था कि इसका निकाह भी चंद माह बाद होने वाला था, तो फिर वो शैतान के बहकावे में आकर ये सब क्यों कर रही थी। इमाम साहिब चुपचाप उठे और मस्जिद की तरफ चले गए। रात काफी गहरी हो चुकी थी। इमाम साहिब ने मैयत को दफनाने का हुक्म दिया और कब्रिस्तान वापस चले गए। अंधेरे में एक नई कब्र खोदी गई।
किसी को भी कब्र पर रोशनी डालने की इजाज़त नहीं दी गई। फिजा में मिट्टी की सरसराहट सुनाई दे रही थी और नूरी को मिट्टी के हवाले कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, खुदारा अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा काम न करें कि अल्लाह ताला दुनिया में ही रुसवाई का फैसला कर दे। अगर कभी कोई गुनाह हो भी जाए तो फ़ौरन अल्लाह से मुआफ़ी मांगें और सच्ची तौबा करें।